हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन थोड़ी से डिले हैं, बट थोड़े नहीं ज़्यादा डिले हैं, बट हाँ डेफिनेटली वी आर हियर। तो चलो आओ फटाफट आज के सेशन की कुछ न्यूज़ हैं वो कवर करते हैं, देखते हैं। ला गणेशन जिनका अभी देहांत हो गया था चेन्नई में, वो किस पार्टी से के लीडर थे? बेसिकली बीजेपी, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे ला गणेशन। ही वॉज द गवर्नर ऑफ नागालैंड and the former senior BJP leader from Tamil Nadu. He passed away and he was the 21st governor of Nagaland. इससे पहले भी मणिपुर, वेस्ट बंगाल इनके गवर्नर रह चुके थे ला गणेशन, और मेंबर भी थे राज्यसभा के फ्रॉम मध्य प्रदेश। सीनियर लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के। ठीक है, ऐप जिन भी बच्चों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज़ गो टू द ऐप प्ले स्टोर एंड ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं किस स्टेट ने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट विद इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दैट मशीन्स कॉर्पोरेशन, जिसका नाम आप जिसको IBM के नाम से जानते हैं, टू डेवलप क्वांटम कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। तो महाराष्ट्र ने IBM के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैड साइन इट टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी फॉर supporting the state's quantum initiatives. This was formalized during the IBM's India's Client Experience Center, जो basically that was aptly titled Gateway to the Viksit Bharat in Mumbai. This facility underscores IBM dedication to foster technology-driven growth in India and aligns with the national vision for a developed innovation-led economy, and it is supported by the National Quantum Mission. जो सेंटर है, it will serve as the collaborative hub जहाँ पे IBM के experts, clients, partners सब पार्ट लेंगे, and they will create solutions specifically that is designed to address the need of India's unique business challenges. आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने साइन किया है MOU विद वेरियस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, इनमें से एक बैंक है कोटक महिंद्रा, जिसके साथ MOU साइन नहीं किया गया है, बाकी बैंक्स के साथ किया गया है AU एक्सिस, धनलक्ष्मी इंडस। ठीक है, एंड क्वेश्चन यही है कि वेरियस प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ साइन किया हुआ है टू एक्सटेंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू MSME। इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ MOU साइन नहीं किया गया? ठीक है, तो AU फाइनेंस बैंक, इंडसलैंड, एक्सिस, धनलक्ष्मी, कर्नाटका, इन सब बैंक के साथ MOU साइन किया गया है, एंड दिस इज बेसिकली टू एक्सटेंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू MSME एंड टू हेल्प देम लिंक to the formal financial system with increased focus on the banks to expand their outreach basically to the MSME, that is micro and small enterprises, right? जो agreement है, it is expected to be force multiplier in the efforts to bank to reach last mile things or people or businesses, right? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसको चूज़ किया गया है बाय इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस के द्वारा टू लीड इंडियाज फर्स्ट नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेटरी कॉन्स्टलेशन। तो दिस इज पिक्सल। ठीक है, पिक्सल हैज़ बीन chosen for what? To lead the consortium of companies under the to lead basically InSpace have announced an investment in National Earth Space Constellation, and they have selected Pixel to lead the consortium of companies under the PPP framework. And this initiative is basically led by Pixel with consortium including Pearside Space, Satshore Analytics India and Dhruva Space. For the first time in the history of Indian space sector, private consortium जो है they would invest more than 1200 crores over the next 5 years and will launch constellation of 12 state-of-art EO satellites that is equipped with pancharomatic, multispectral, hydrospectral and microwave SAR sensors. This setup will provide analysis ready data and value added services, and it will utilize
across various sectors, जिसमें climate change monitoring, disaster management, agriculture infrastructure, marine surveillance, national security and urban planning, everything is being included. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी सैटेलाइट है. which satellite carried out the launch of second commercial Ariane 6 mission. तो that is METOP SGA-1. ठीक है, तो Ariane 6 rocket took off from Europe's spaceport in Kourou, French Guiana, and this was basically the second commercial mission of the rocket, and the first was held in March 2025. METOP SGA-1 satellite was developed to sun synchronous orbit at an altitude of around 800 km, and it is owned by European Organization for Exploration of Meteorological Sites, that is EUMETSAT. ठीक है, this was the first next generation European polar orbiting weather satellite. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थायू मनावर थीथम स्कीम जो है एसोसिएटेड है विद प्रोवाइडिंग राशन प्रोडक्ट टू होम. दिस इज द स्कीम प्रोवाइडिंग राशन प्रोडक्ट टू द सीनियर सिटीजन एंड पेंशन विद द डिसेबिलिटीज पीपल. एंड तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है स्टेलिंग, MK स्टेलिंग, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया at the doorstep of over 21.7 lakh senior citizen and person with disability. अगर आउटले की बात करें तो 30 करोड़ का आउटले है. बेनिफिशरीज 20 लाख बेनिफिशरीज हैं सीनियर सिटीजन जो 70 साल के ऊपर हैं, और 1.3 लाख अराउंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं. आइटम जैसे अगर आप बात करें राइस, शुगर, ये दिए जाएंगे राशन कार्ड होल्डर्स को एट देयर डोर स्टेप. एंड स्पेशल डिलीवरी व्हीकल्स बेसिकली इस्टेब्लिश होंगे जिसमें तराजू होगी, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वेट मेजरमेंट होगा, एंड ताकि एक्यूरेसी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. मंथली सप्लाई होगी महीने में एक बार. दिस विल बी प्रोवाइडेड ऑन द सेकेंड सैटरडे एंड संडे ऑफ द एवरी मंथ. आगे चलते हैं. डैश हैज़ रिसेंटली signed an agreement with बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंस. पैलियोसाइंस क्या होता है? पैलियोसाइंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ अर्थ पास्ट, यू कैन से एंशंट जो लाइफ साइकिल थी अर्थ की, ठीक है, उसकी स्टडी को पैलियोसाइंस बोलते हैं इन लेमन टर्म्स. तो किसने पहली बात तो एग्रीमेंट साइन किया? तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने ये MOU साइन किया है विद बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंस टू मार्क इंडियाज यूनिफाइड platform for science and culture. And this agreement is basically India's first initiative to combine science and culture and the showcase India's scientific culture accomplishments to both the domestic and international audience. This will strengthen science and culture throughout the interdisciplinary research, collaborative events and expert exchange. ये जो पार्टनरशिप है इट विल कम रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन, म्यूजियम डेवलपमेंट, फील्ड वर्क, ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड, जॉइंट पब्लिकेशन, ट्रेनिंग इन कंजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट एंड पब्लिक आउटरीच. ये ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है दिस वाज हेल्प फॉर स्टूडेंट इन द IGNCA's 11 PG डिप्लोमा कोर्सेज. कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, इंडियन लिटरेचर एंड ऑल, to integrate the traditional knowledge into the modern education. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है हॉक, एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है. इसकी फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हॉक? हॉक बेसिकली इज हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल. ठीक है, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल को. दिस इज़ अ डिजिटल कम सेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज सिमिलर टू द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम दैट इज बेसिकली यूज्ड बाय द पुलिस. दिस कस्टमाइज्ड वर्जन was launched by Union Minister Kirti Vardhan Singh
during the World Elephant Day celebration in Coimbatore, and this is basically a real time intelligence and monitoring capabilities to boost wildlife protection and conservation effort. And this has become, Tamil Nadu has become the third state after Kerala and Karnataka to develop such a software by the Wildlife Trust of India and IT provider NTT Data. So this was it from today's session. I hope you guys might have liked the session. पसंद आया तो like करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you so much.